हाय एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल स्टडी फॉर्मूला। तो आज जो चैप्टर हम कवर करने वाले हैं वो है क्लास 11th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 सेट्स। सो वी विल बी कवरिंग ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ दिस चैप्टर इन दिस वन वीडियो। बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर वी वुड लाइक टू टेल यू दैट दिस चैप्टर इज गोना बी रियली इजी। इस चैप्टर में कुछ भी प्रीवियस क्लास से रिलेटेड नहीं है बिकॉज दिस चैप्टर इज टोटली बिल्ड अप ऑफ न्यू कॉन्सेप्ट्स। टू स्टार्ट क्लास 11 दिस इज अ परफेक्ट चैप्टर विच विल हेल्प यू टू गेन कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ। So without any delay, let's start the chapter. So the topics we are covering in this video are sets and their representation, types of sets, subset, proper subset, Venn diagram, operation on set, complement of a set. तो here you can see a blue box जिसके अंदर वो चीज़ें लिखी हैं which we are providing you to enhance your study to a great level. So we will be providing you explanation of each topic. NCERT notes will be given to you which are already given in NCERT in between chapters. NCERT examples, flowcharts and mind maps will be given by us, and summary formula sheet will be provided after every video. तो अब हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं एंड आवर फर्स्ट टॉपिक इज सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। तो व्हाट इज सेट? सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेल डिफाइंड कलेक्शन। फॉर एग्जांपल सेट ऑफ बुक्स, सेट ऑफ पेन्स एटसेट्रा। ठीक है, नाउ हाउ डू वी डिनोट देम? वी डिनोट इट बाय कैपिटल लेटर्स। फॉर एग्जांपल कैपिटल A is equals to ABC enclosed in curly braces. Okay, so here capital A denotes the set and ABC are the elements of set A and curly braces are the braces. Okay, we always write our elements inside the curly braces in this chapter sets. Okay, and here is a sign which looks like our alphabet E. It belongs it denotes that this symbol belongs to, and this symbol denotes that does not belongs to. So A belongs to capital A, which means A is an element of set A, and D does not belongs to A, which means D is not an element of A. Okay, now here are some common examples of sets. Okay, so set of all natural numbers are represented by capital N. Set of all integers represented by capital Z. Set of all rational numbers represented by capital Q. Set of real numbers are represented by capital R. Set of positive integers represented by capital Z plus. Set of all positive rational numbers are represented by capital Q plus. Set of positive real numbers are represented by capital R plus. नाउ अगर हमें इसमें ये जो सेट ए है या फिर कोई भी सेट है, इसमें अगर हमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स फाउंड करने हैं तो हम इसे कैसे करेंगे? सो इसके लिए एक टर्म है मैथमेटिक्स में सेट्स चैप्टर के अंदर विच इज़ कार्डिनल नंबर। इसमें क्या होता है? इन दिस वी डिफाइन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पर्टिकुलर सेट। फॉर एग्जांपल सेट ए इज इक्वल्स टू A, B, C. These are the elements, A, B, C are the elements, and these are 3 elements. So number of cardinal number in set A is equals to 3. So cardinal number of A is 3. Now I think you have got the basic idea of this. So there are 2 things which you need to remember to make your concept strong. First is no repetition of element is allowed. If for example we can take A is equals to ABC and A is equals to AAC. So in second set we can see that A is repeated 2 times and no elements can be repeated. This is a rule. And second one is order of elements are not that important. So A is equals to ABC and another set A is equals to BAC. So order is different but it doesn't matter. It's a set. Okay. आई थिंक अब आपको सेट्स का एक बेसिक आइडिया लग गया है, उसके रिप्रेजेंटेशन का एक बेसिक आइडिया लग गया है. सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड. So our next topic is 2 methods of representing a set. First is roster or tabular form, second is set builder form. हमारे 2 मेथड है सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए. एक है रोस्टर फॉर्म, सेकेंड है सेट बिल्डर फॉर्म. रोस्टर फॉर्म को हम टेब्यूलर फॉर्म भी कहते हैं. फॉर एग्जांपल ये होता क्या है पहले हम ये देखते हैं. ये एक फॉर्म है जिसमें हम एनक्लोज ब्रैकेट के अंदर अपने एलिमेंट्स लिखते हैं और एलिमेंट्स को हम कॉमा से सेपरेट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल कैपिटल A is equals to braces start 2, 4, 6 braces closed. Here capital A denotes set A.
So it is a representation of roster or a tabular form. Now come on to our second form, which is set builder form. What is this? It describes, in this we describe the element of the set and encloses it within a braces. इसमें हम इन्हें braces के अंदर close करते हैं elements को, और जो elements हम roster form में simply लिख देते हैं in a form of number. In this set builder form we used to write it in the description form. मतलब इसमें हम इसे पूरा डिटेल में डिस्क्राइब करके लिखते हैं कि वो elements क्या हैं. What is it in real life? Okay, so a is in this example we can see that a is equals to x such that x is an even number. In roster form it is 2, 4, 6. What is 2, 4, 6? It's an even number. So in this set builder form, if we interchange both of them, then in set builder form हम इसे देख सकते हैं कि a is equals to x such that x it is an even number. तो ये हमारे even number है. तो अब आपको इसकी रिप्रेजेंटेशन का भी आइडिया लग गया, इसके 2 मेथड्स भी पता चल गए हैं. ओके, नेक्स्ट हम इसके बारे में पढ़ेंगे. सो मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड. नाउ हियर आर सम एग्जांपल्स ऑन आवर प्रीवियस टॉपिक्स. इससे पहले जितने भी हमने टॉपिक्स पढ़े थे, आई थिंक 2 टॉपिक्स हम पढ़ चुके हैं, तो उसके बारे में अब हम एक क्वेश्चन करेंगे. 2 मेथड्स के बारे में हम एक क्वेश्चन करेंगे. एक रोस्टर फॉर्म में एक एग्जांपल और एक फॉर्म है सेट बिल्डर फॉर्म में. दोनों टाइप से हम सॉल्व करेंगे. सो फॉर एग्जांपल नंबर 1, लेट्स स्टार्ट. राइट सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x² + x - 2 = 0 इन रोस्टर फॉर्म. अब हमें इस इक्वेशन को रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे? In solution we can see that x² + x - 2 = 0. It is given in the question. So then we can use the splitting the terms method. इसमें हम splitting the term method use करेंगे, factorize करेंगे 2 और x. So x² + 2x - 1x - 2 = 0. फिर x हम इसे further solve करके हमारी x की 2 values आ जाएंगी. x = 1 and x = -2. Therefore the equation in solution set can be written in roster form. अब अगर हमें ये x = 1 and x = -2 को हमें अगर रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? एक कर्ली ब्रेसेस हम स्टार्ट करेंगे, फिर 1, -2 कर्ली ब्रेसेस क्लोज. दिस इज द फॉर्म ऑफ अ रोस्टर फॉर्म. इन द फॉर्म ऑफ नंबर इट इज़ कॉल्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रोस्टर फॉर्म, जिसमें हम कर्ली ब्रेसेस जो होते हैं उनसे स्टार्टिंग और एंडिंग करते हैं और बीच में एलिमेंट्स को हम कॉमा से सेपरेट करते हैं. नेक्स्ट कम ऑन टू आवर सेकेंड एग्जाम्पल. ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में बेस्ड है. सो लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. राइट द सेट A 1, 4, 9, 16, 25 एंड सो ऑन इन सेट बिल्डर फॉर्म. इसे हमें सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है दिस सेट A को. सो नाउ हियर्स द सोल्यूशन. वी में राइट द सेट A एज A = नाउ फर्स्ट रीड द क्वेश्चन. अगर हम क्वेश्चन में देखें तो हमारा सेट A है, इसमें हमें कुछ सिमिलैरिटी दिख रही है. यस, हमें इसमें सिमिलैरिटी दिख रही है. दैट 1 is a square of 1, 2 is a square of 4, नहीं 4 is a square of 2, 9 is a square of 3, 16 is a square of 4, 25 is a square of 5 and so on. तो हम ये देख सकते हैं कि these are the continuously moving natural numbers. So we can write it in the form of A = x such that x is the square of natural numbers. Braces closed. Alternatively, we can write it in short form. If we want to write it, then we can write it A = bracket start x such that x = n², where n belongs to natural number. You have to write it. मतलब आपको ये लिखना पड़ेगा कि आप उस पर्टिकुलर वेरिएबल को, जैसे यहाँ पे मैंने n लिया है, उस n को आप लिख क्या रहे हो, उसे आप क्या रिप्रेजेंट कर रहे हो, वो किससे बिलोंग करता है. So we have to write in this form. So ऐसे हमारे पास 2 एग्जाम्पल्स थे. I hope that you understand these examples. अगर आपको इसमें कोई भी क्वेरी हो, then you can write your question in the comment box. We will give the answer. Now we will talk about the types of sets. There are 9 types of sets. First, universal. Second, infinite. Third, equal sets. Fourth, empty set. Fifth, power set. Sixth, singleton set. Seventh, disjoint set. Eighth, equivalent set. And ninth, finite set. So now we will study about these types of sets in very detail, ताकि हमें एक तरीके से पता चल जाए कि exactly sets होते क्या. First is universal set. So universal set क्या होता है? It is a superset for all sets under consideration. मतलब universal set एक ऐसा set होता है जिसमें बाकी सारे sets जितने हम consider कर रहे हैं उनके सारी elements उस particular universal set में present हो. For example,
A is equals to 1 2 3, एक A set है हमारे पास, and we have B set which includes elements like 1 A B C. तो here we can see that there are some elements in A also and in B also. अगर हम इसका यूनिवर्सल सेट देखें तो हमारे पास ये सारे एलिमेंट्स होने चाहिए अंडर यूनिवर्सल सेट. तो 1 2 3 हमने A का ले लिया, सो इट विल बी इन यूनिवर्सल सेट. और 1 A B C भी जो है वो भी हमारे यूनिवर्सल सेट में होना चाहिए. बट 1 को हम रिपीट नहीं करेंगे बिकॉज ये सेट्स का रिप्रेजेंटेशन के अगेंस्ट है. सो we will follow the rules and we will make a set which is universal set. तो इसके अंदर हम एलिमेंट्स कौन से डालेंगे? 1 2 3 ABC, which is a perfect universal set and which is also following the rules. So अब second type का set अगर हम देखें तो that is finite set. Finite set क्या होता है? A set that is empty or consists of definite numbers of element. So इधर क्या होता है? Finite हमें पता है कि finite is something which we can count. इसे हम count कर सकते हैं, that is finite set. ठीक है, तो जिसके अंदर मतलब ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको काउंट किया जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल A is equals to 1 2 3. तो जो 1 2 3 है दीज आर काउंटेबल नंबर्स, मतलब हम गिन सकते हैं कि हम ऐसे ही बता सकते हैं इसका कार्डिनल नंबर 3 है. नाउ वी कम्स टू इनफाइनाइट सेट. इनफाइनाइट सेट क्या होता है? अ सेट दैट इज नॉट अ फाइनाइट सेट. ऐसा सेट जो फाइनाइट ना हो. फाइनाइट मतलब क्या होता है? काउंटेबल. तो हम ऐसे ही मतलब अंदाजा लगा सकते हैं दैट येस इनफाइनाइट सेट इज समथिंग विच वी कैन नॉट काउंट. द एलिमेंट्स ऑफ विच सेट वी कैन नॉट काउंट. मतलब इस सेट के एलिमेंट्स को काउंट नहीं किया जा सकता. दे आर they goes to infinite numbers. So uncountable कह सकते हैं हम इसको, या फिर infinite elements भी कह सकते हैं. इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो A is equals to 1 2 3 4 and so on. ये एक एग्जाम्पल है नेचुरल नंबर्स का, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, क्योंकि इनफाइनाइटली मैनी हो सकते हैं, मतलब कितने भी हो सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है. Next we comes to equivalent set. Equivalent set क्या होता है? The cardinal number of two sets should be equal but their elements may differ. मतलब क्या होता है? इक्विवेलेंट, इक्वल होने के तरह, मतलब इक्वल के तरह बट नॉट एग्जैक्टली इक्वल. इक्विवेलेंट को हम कह सकते हैं कि उसके जो कार्डिनल नंबर है मीन्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A एंड सेट B आर इक्वल बट एग्जैक्टली द एलिमेंट्स आर नॉट इक्वल. मतलब अगर A एक सेट है हमारे पास 1 2 3 एंड B एक सेट है A B C, तो इसके जो हमारा कार्डिनल नंबर है वो 3 है, लेकिन हमारे जो एलिमेंट्स अंदर के वो डिफरेंट है. तो इस टाइप के सेट को हम कह सकते हैं इक्विवेलेंट सेट. ठीक है, तो हियर NA इज इक्वल्स टू NB, बट NA अगर कोई सेट है उसके एलिमेंट्स डिफर हो सकते हैं NB से. ठीक है, सो नाउ कम्स टू इक्वल सेट. द सेट्स दैट हैव द सेम कार्डिनलिटी एंड ऑल इक्वल एलिमेंट्स. अब इक्वल सेट वो हो जाता है जिसका कार्डिनल नंबर भी सेम हो और इक्वल एलिमेंट्स भी हों उसमें, मतलब एलिमेंट्स भी सेम हो. फॉर एग्जाम्पल A एक सेट है 1 2 3 4 5, B भी एक सेट है 1 2 3 4 5. सो A and B आर इक्वल सेट्स. Type of set is disjoint set. A pair of set that do not have any common element. इसमें क्या होता है? इंटरसेक्शन नहीं होता. वी विल स्टडी अबाउट इट. तो जो इंटरसेक्शन है ना, मतलब ये होता है कि कोई कॉमन चीज़ तो सेट्स के बीच में होती है, उसे हम इंटरसेक्शन कहते हैं. तो अगर किसी दो सेट्स में, मतलब कोई दो सेट्स हैं, उनके बीच में अगर कोई भी एलिमेंट्स कॉमन ना हो, कुछ भी कॉमन ना हो, सो दैट इज डिसजॉइंट सेट. क्योंकि वो किसी भी वजह से जुड़े हुए नहीं है, दे आर नॉट जॉइंट विद ईच अदर, तो वो अलग अलग हैं. दैट्स वाई दे आर नोन एज डिसजॉइंट सेट्स. तो इनका एग्जाम्पल हमें देख ही लिया. A में अगर एलिमेंट्स है 2 और 3 एंड सेट B में अगर हम एलिमेंट्स देखें 4 and 5, तो ये जो दोनों हैं ये इसमें कॉमन कुछ भी नहीं है. दैट्स वाई दे आर डिसजॉइंट सेट्स. अब अगर हम नेक्स्ट टाइप के सेट की तरफ बढ़ें, दैट इज एम्प्टी सेट. तो वो क्या होता है? इट इज़ अ यूनिक सेट हैविंग नो एलिमेंट्स सच दैट इट्स कार्डिनलिटी इज 0 एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ नल सेट. Now our next topic is subset. What is subset? Set A is said to be a subset of set B if all the elements of set A are also present in set B. What is this? So let's discuss it. For if we have taken example, A is equals to 1 2 3 and B is equals to 1 2 3 4 10. Okay, these are the elements of set A and B. तो अब हमें इसका सबसेट देखना है कि कौन किसका सबसेट है. अगर हमें A और B का सबसेट प्रूफ करना है तो हम कैसे देखेंगे? A में 1 2 3 एलिमेंट है. अगर हमें A इज़ अ सबसेट ऑफ B बताना है तो A के सारे एलिमेंट हमारे B के अंदर होने चाहिए. लेट्स चेक इट आउट. A के सारे एलिमेंट हैं 1 2 3 और यही हमारे B में होने चाहिए. क्या ये है 1 2 3? यस ये है. तो ये A हमारा B का सबसेट है. वी कैन राइट इट A इज़ अ सबसेट ऑफ B.
क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर है. नाउ सेकेंड इज सबसेट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस साइन. दिस इज अ साइन ऑफ सबसेट. वी यूजुअली राइट दिस. ओके, तो अब हम एक एग्जांपल देखेंगे इसी से रिलेटेड. तो ए हमारा सेट था, अब इसमें हम साइन लगा के इसे रिप्रेजेंट करते हैं कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी. बस यहाँ पे हमने साइन लगा के एक रिप्रेजेंटेशन दी, यू कैन सी इट. ओके, और ये एक हमारा डायग्राम बना है जिसमें हमारा ए है एक सेट और वो एक बड़े से बी के सेट के अंदर, मतलब ये बी पूरा एक होल सेट है, इसके अंदर हमारा एक सेट आता है. बी सारे एक बी का एलिमेंट सेट है जिसके सारे एलिमेंट जो हैं वही कुछ एलिमेंट बी के हमारे ए में है. ओके, सो नेक्स्ट इज देयर आर टू टाइप ऑफ सबसेट. टू टाइप के हमारे सबसेट होते हैं, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर. प्रॉपर सबसेट इज व्हाट? A proper subset is one that contain a few elements of original set. Original set के हमारे इसमें कुछ elements होते हैं, जैसे set A हमारे पास है 2, 4, 6. तो हम इसके proper number of sets कितने बताएंगे, ये कैसे होंगे? पहले हम इन्हें सिंगल ब्रेक करेंगे. लाइक 2 एक एलिमेंट है, एलिमेंट 2 इज 4, फिर एक एलिमेंट हम ले लेंगे 6. तो 2, 4, 6 आर 3 एलिमेंट्स. एंड देन हमसे 2, 2 के पेयर मिलेंगे. 2, 4 इज 1 एलिमेंट, 4, 6 इज 1 एलिमेंट, 6, 2 इज 1 एलिमेंट. तो 2, 4, 4, 6 and 6, 2 are again 3 elements. So 3 plus 3, 6. Okay. Then we will take them in the pair of 3. Like हम उस 3 को एक साथ ले लेंगे, 2, 4, 6 को एक साथ, तो ये एक एलिमेंट बन जाए. फिर हमारा एक हमें बात जाननी चाहिए कि एक सेट है हमारा 5 सेट जो हमारा सब में होता है, चाहे वो हम उसमें कम एलिमेंट्स उसमें ज़्यादा एलिमेंट्स हो, बस उसमें हमारा एक 5 सेट तो हमेशा रहेगा. ये क्या होता है, हमारे जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर जब कुछ नहीं होता है तब हम उसे 5 कहते हैं. इसका एक साइन भी है. तो इसके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाते हैं? 2. लेट्स काउंट इट. 2, 4, 6, 2, 4, 4, 6, 2, 6, 2, 4, 6 and 5. Okay, now let's go on to our next subset, which is improper subset. An improper subset contains every element of the original set along with null set. इस सेट में क्या होता है इम्प्रॉपर सेट में कि वो सारे एलिमेंट कंटेन करता है हर सेट के, जिसमें नल सेट भी इंक्लूडेड होता है. सो आपको अब सबसेट समझ आ गया होगा. लेट्स मूव ऑन टू वन नेक्स्ट. Now, what is Venn diagram? Our next topic is Venn diagram. A Venn diagram is an illustration that uses circles to show the relationships among things or finite group of things. So here we can see a rectangular box, which is a representation of Venn diagram. हमें एक यहाँ पे रेक्टेंगुलर बॉक्स लेना है. जितने हमारे नंबर ऑफ सेट हमें दे रखे हैं, ए और बी हमारे यहाँ पे एग्जांपल में, जैसे हम एग्जांपल में देख सकते हैं, सेट हमारे सेट ए एंड सेट बी दिए. दीज आर 2 सेट्स. तो जितने सेट हैं उतने हम उसमें सर्कल्स बना लेंगे. तो ये हमारा एक रेक्टेंगुलर कॉलम है, इसके अंदर हमने 2 सेट बना लिए हैं और उन दोनों सेट का हमने रिप्रेजेंटेशन कर दिया है. जैसे सेट ए को हमने ए से रिप्रेजेंट करा है, सेट बी को हमने सेट बी से रिप्रेजेंट करा है. और जब हम ये दोनों ऐसे लिख देते हैं तो ये सेट ए सेट बी हो जाता है. और इसके होल में जो बाहर हमारी स्पेस है वो पूरी यूनिवर्सल सेट है जिसमें हमारे सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं. तो सेट ए है हमारे पास फॉर एग्जांपल 1, 3, 5, 7, 8. सेट बी है 2, 4, 5, 6. तो सेट ए के हम पहले एलिमेंट्स देखेंगे. इस वाले सर्कल में, इस सेट ए वाले सर्कल में ये एलिमेंट्स है कि नहीं. 1, 3, 7, 8 तो है, लेकिन 5 का भी हम एलिमिनेट करेंगे. ठीक है, अब सेट बी में से भी हम 5 को एलिमिनेट करेंगे. 2, 4, 6 हम लिखेंगे. 2, 4, 6. ओके, अब 5 हमने क्यों एलिमिनेट करा? क्योंकि इन दोनों में हमारा 5 कॉमन है, तो हम इसे अलग अलग नहीं लिख सकते सेट ए और सेट बी में. इसमें हम कैसे लिखेंगे, इन दोनों में 5 कॉमन है ना, तो इन दोनों के बीच का जो ये इंटरसेक्शन होता है इसके बीच में हम इसे 5 लिखेंगे. क्योंकि ये दोनों में आ रहा है तो हम इसे बिल्कुल बीच में लिखेंगे. सो दिस इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन वेन डायग्राम. तो इसके बारे में हमें बाद में क्वेश्चंस मिलेंगे हमारी एनसीईआरटी बुक्स में, विच वी विल सॉ फर्दर. इसके बारे में हमें एक्सप्लेनेशन बाद में मिलेगी. आई थिंक आप लोगों को ये समझ आ गया होगा. नाउ इफ़ यू हैव अंडरस्टूड दिस, देन मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड. Now our next topic is operations on set. In our daily life, if we talk about what are the operations of mathematics, so it is plus, minus, division and multiplication. Okay, but in this chapter we usually have 3 types of operation. Okay, first is the union of set, second is intersection of set, third is difference of a set. So let's talk about them further. Okay, first is union of set. It is represented by a symbol U, or we can say it as U. Okay, the union of 2 set is a set containing all elements that are in A and in B
It is denoted by A intersection B, A union B. ओके तो अब इसमें क्या होता है, इसमें यूनियन का मतलब क्या होता है? यूनियन होता है किसी दो चीज़ों को एक साथ लाना. लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी हैव सेट ए एंड सेट बी, अगर हमसे बोला सेट ए यूनियन बी करना है तो मतलब उन दोनों के एलिमेंट्स को एक साथ लिखना है. जैसे ए हमारे पास है 1 2 और बी हमारे पास है 2 3, तो अगर हमसे पूछा ए यूनियन बी तो हम इसे लिखेंगे ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू 1 2 3, दोनों को एक साथ. लेकिन आप ये पूछेंगे अब कि 1 2 2 3 क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि बी में भी तो 2 प्रेजेंट है या फिर ए में भी तो 2 प्रेजेंट है, तो 2 टाइम्स प्रेजेंट है तो हम 2 टाइम्स क्यों नहीं 2 लिखेंगे. हम इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि इन फर्स्ट स्लाइड वी हैव डिस्कस कि हमारा एक मेन पॉइंट होता है कि हमारे कोई भी एलिमेंट्स रिपीट नहीं होता है एक सेट के अंदर. तो ए यूनियन बी में भी हम जो सेट है उसमें भी हम ये एलिमेंट रिपीट नहीं करेंगे. तो 1 2 3 जो दोनों में है बस 1 2 3. ओके, नाउ कम ऑन टू वन नेक्स्ट type of operation, which is intersection of set. It is represented by downward U. The intersection of two set A and B is the set of all elements which are common. The intersection of these two sets is denoted by A intersection B. For example, अगर हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं जैसे हमारे पास सेट A है 1 2 3 4 5, एक सेट B है 3 4 6 8. तो अगर हम इसका इंटरसेक्शन चाहते हैं तो इंटरसेक्शन पहले तो समझते हैं होता क्या है. इंटरसेक्शन होता है हमारा जैसे दो सेट है उन दोनों के बीच में जो भी कॉमन एलिमेंट होगा वो हमारा इंटरसेक्शन है. जैसे अभी हमने वेन डायग्राम में बात करी इससे पहले कि जो उन दोनों ए और बी सेट के बीच का जो इंटरसेक्शन होता है वो होता है उन दोनों के बीच का कॉमन एलिमेंट. तो इंटरसेक्शन यहाँ पे भी हम अगर ए इंटरसेक्शन बी देखें तो वो है 3,4, क्योंकि 3,4 दोनों 3,4 सेट ए में भी है, 3,4 हमारा सेट बी में भी है. तो इन दोनों का हमारा इंटरसेक्शन होगा 3,4, जो दोनों में सेम है वो हमारा इंटरसेक्शन में आएगा. ओके, नाउ मूव ऑन टुवर्ड्स third operation, which is difference of set. It is represented by minus sign because it is a difference. Okay, ये हमारा minus जैसा ही है. Okay, the set A minus B consists of elements that are in A but not in B. Example, if A is equals to एक एग्जाम्पल है हमारे पास, इसमें हमारा ए एक सेट है 1 2 3 और बी है 3 5. अगर इसमें हमें डिफरेंस इनका निकालना है, अगर ए माइनस बी कर रहा है मीन्स ए के एक एलिमेंट एक सेट है उसमें से बी के सारे एलिमेंट हम माइनस कर देंगे ए के सेट में से. ए सेट है 1 2 3, बी सेट है 3 5. तो ए और बी में ए वाले सेट में हम बी के सारे हटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 1,2. 1,2 हमारा ए एलिमेंट में जाएगा, मतलब ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए बन सकता है. तो आपको डिफरेंस ऑफ सेट भी समझ आ गया है. बस कुछ नहीं करना है, यूनियन ऑफ सेट में उन दोनों को एक साथ मिला के लिख देना है, दोनों सेट के सारे एलिमेंट को एक साथ. इंटरसेक्शन में उन दोनों में से जो कॉमन है उसे लिखना है. डिफरेंस ऑफ सेट में अगर ए माइनस बी पूछा है तो बी को हटा के ए के एलिमेंट लिखना है, अगर बी माइनस ए पूछा है तो बी को लिखना है, ए के सारे एलिमेंट हटा देना है. दैट्स इट. आई थिंक आपको ये सब समझ आ गया. अगर आपको इसमें थोड़ा भी कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं. Now we will talk about complement of a set. Complement क्या चीज़ होती है? We will study about it. First we should read it. What is it about? तो यहाँ लिखा गया है. Let's see. It can be said that the difference between the universal set U and subset A gives us the complement of set A. क्या लिखा है? Let's understand it first. तो क्या है? We have studied already. We have studied Venn diagram. So we can now see and understand the diagram which is shown on the screen. तो यहाँ लिखा गया कॉम्प्लीमेंट क्या होता है किसी भी चीज़ का. मतलब अगर हम बोलें कि ए का कॉम्प्लीमेंट, इफ़ इसे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, अब देखो कॉम्प्लीमेंट को कैसे शो करते हैं, ए डैश से भी शो कर सकते हैं. ए जैसे ए की पावर 2 लगाता है ना, तो ए की पावर 2 की जगह ए की पावर नहीं कहेंगे बट ए के ऊपर एक स्मॉल सी वी कैन राइट. इट ऑल्सो डिनोट्स कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट एक चीज़ होती है, इसमें बोला गया है कि यूनिवर्सल में से अगर हम उस पर्टिकुलर सेट को माइनस कर दें तो जो बचा कुछ हमारे पास पार्ट होता है दैट इज़ कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर सेट. तो अगर हम देखें, अगर हमें चाहिए ए डैश, इधर फिगर में यू कैन सी एक यूनिवर्सल सेट है हमारे पास. ठीक है, और यहाँ पे एक सेट ए दे रखा है और अगर हमसे पूछा गया है कि ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा तो इधर व्हाट वी विल आंसर, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए को छोड़ के जितना बाकी सारा बचा इन यूनिवर्सल सेट दैट इज़ ए कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, यूनिवर्सल में से सेट ए के एलिमेंट्स को माइनस अगर हम कर देंगे तो देन वी विल गेट द ए कॉम्प्लीमेंट एलिमेंट्स. तो ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास इतनी ईजिली आ जाएगा कि सिंपल सी बात है, यूनिवर्सल में से जो सेट को कॉम्प्लीमेंट पूछा उस सेट को माइनस कर दो, वी विल गेट द कॉम्प्लीमेंट.
फॉर एग्जाम्पल वी कैन सी यूनिवर्सल में अगर हमारे पास एलिमेंट्स हैं, इवन एलिमेंट्स हैं, कि मतलब इवन नंबर्स का सेट है, ये फाइनाइट सेट है, 2 4 6 8 10 12, अगर ये हमारे पास एक सेट है यूनिवर्सल सेट, तो अगर हमसे पूछा हुआ है, हमें दे रखा है ए सेट क्या दे रखा है 4 6 8, अगर हमसे पूछा गया है कि तुम्हें कॉम्प्लीमेंट बताना है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, यू हैव टू टेल ए कॉम्प्लीमेंट. तो ए कॉम्प्लीमेंट हाउ यू विल फाइंड इट, you will simply what you will do, you will subtract a from universal set. क्लियर, इट इज़ सो सिंपल. यूनिवर्सल में से उस सेट को हटा देना है जिसका कॉम्प्लीमेंट पूछा गया है. सो यूनिवर्सल दे रखा है 2 4 6 8 10 12 और ए दे रखा है 4 6 8. इफ़ वी विल सब्ट्रैक्ट देम देन वी विल गेट 2 10 12. ठीक है, सिंपल सी बात है. वी विल गेट 2 10 एंड 12. तो ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स क्या आ गए 2 10 एंड 12 जो सेट ए में नहीं है. सिंपल सी बात है. कॉम्प्लीमेंट का मतलब है जो चीज़ उस सेट में नहीं है. ए का कॉम्प्लीमेंट अगर पूछा गया तो ए सेट के अंदर जो एलिमेंट्स नहीं है बाकी यूनिवर्सल में वो है तो उन्हें लिख दिया. बी का कॉम्प्लीमेंट पूछते हैं यू माइनस बी हो जाता. सिंपल सी बात है. ठीक है, सो यहाँ से हम दो फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं. यूनिवर्सल माइनस सेट ए इज इक्वल्स टू ए का कॉम्प्लीमेंट एंड यू यूनिवर्सल इज इक्वल्स टू ए प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट. दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला, यू शुड रिमेंबर इट. Now after studying this much, we should study some properties on the operation of sets. ठीक है, अब ये क्या चीज़ है, सिंपल सी बात है, हमें प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है. किस पे पढ़नी, किस चीज़ की प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है, जो ऑपरेशंस पढ़े ना हमने सेट्स पे, लाइक यूनियन, इंटरसेक्शन एंड ऑल. तो उन सब की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं विच वी नीड टू रिमेंबर. ठीक है, बहुत ईजी होती हैं, बस पढ़नी है. क्या चीज़ है, हमने लेट सपोज ये फिगर में देख सकते हैं, दो हमने ले लिए सेट्स ले लिए, एक ए एक बी, दोनों का इंटरसेक्शन दिखाया है ए इंटरसेक्शन बी से. अब प्रॉपर्टीज़ क्या है, पहली प्रॉपर्टी ये है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट या ए डैश इज इक्वल्स टू यूनियन. इसका क्या मतलब हुआ, ए सेट हमारे पास है और ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा यूनिवर्सल माइनस ए. यूनिवर्सल माइनस ए क्या बचेगा, उस ए सेट को छोड़ के बाकी सारा बचेगा, वो सारा मतलब ये ब्लू के अलावा, ब्लू दे रखा है ना शेड, इस शेड को छोड़ के बाकी जितना बचा है दैट इज़ मतलब ए कॉम्प्लीमेंट बचेगा ये, और सब मिला के यूनिवर्सल सेट हो जाता है. तो अगर हम ए का इंटरसेक्शन मतलब सेट ए और उसको छोड़ के जितना है ए कॉम्प्लीमेंट जिसे हम बोलते हैं, दोनों को अगर हम यूनियन कर दें, दोनों को जोड़ लें, दोनों को एक साथ कर दें, तो ये पूरा क्या बन जाएगा हमारे पास, एक ए है, एक ए के अलावा जो पार्ट है, दोनों को अगर ऐड करेंगे तो हमारे पास यूनिवर्सल ही बचेगा. इट्स ऑब्वियस. इससे पहले हमने अभी एक फॉर्मूला पढ़ा, ए प्लस ए डैश इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट. सिंपल सी बात है, यहाँ पे भी अगर हम ए यूनियन प्लस का ही काम कर रहे हैं, यू कैन से दैट कि ए यूनियन ए डैश इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट. सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज 5. ये भी सही बात है. अगर ए है तुम्हारे पास और ए देखो कॉम्प्लीमेंट क्या है, उस चीज़ को छोड़ के ए एक सेट है और ए कॉम्प्लीमेंट एक सेट है, तो ए क्या होता है, एक सेट है तुम्हारे पास और ए कॉम्प्लीमेंट, उस सेट को छोड़ के बाकी के एलिमेंट्स जितने बचे वो ए कॉम्प्लीमेंट हो जाता है. तो ए का अगर इंटरसेक्शन तुम ए उसके एलिमेंट्स के अलावा के एलिमेंट्स के साथ निकालोगे तो इट विल बी ऑलवेज 5. कुछ कॉमन ही नहीं रहेगा ना दोनों में, तो 5 होगा ऑब्वियसली. ठीक है, इंटरसेक्शन वी नो दैट कॉमन एलिमेंट्स को हम इंटरसेक्शन बोलते हैं. जब किसी दो सेट्स के जो एलिमेंट्स होता है अगर कोई कॉमन होता है उसे हम इंटरसेक्शन बोलते हैं. थर्ड प्रॉपर्टी इज यूनिवर्सल सेट का अगर हम कॉम्प्लीमेंट करते हैं दैट विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू 5, क्योंकि जो यूनिवर्सल सेट है वो सबसे लास्ट सेट होता है, उसके बाहर तो कुछ होता ही नहीं है ना. अगर हम उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे उसके अलावा तो कुछ ही नहीं बचता कभी. तो यूनिवर्सल सेट इज मतलब बाउंड्री है, उससे बाहर कुछ नहीं होता. तो यूनिवर्सल सेट के अलावा अगर हम कुछ देखें एलिमेंट्स होते हैं यानी, सो वी कैन से दैट देयर आर नो एलिमेंट्स आउटसाइड दैट यूनिवर्सल सेट, तो 5 हो जाएगा. अब नाउ वी इफ वी विल सी, अगर हम देखिए 5 का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारे पास यूनिवर्सल आ जाएगा. 5 मतलब कुछ भी नहीं, मतलब एम्प्टी मतलब कुछ है ही नहीं. तो कुछ है ही नहीं का अगर हम कॉम्प्लीमेंट करेंगे मतलब कुछ नहीं है उस चीज़ का अगर हम कॉम्प्लीमेंट करें कि उसके अलावा क्या है, तो वी कैन से दैट वो यूनिवर्सल है. अगर यहाँ पे मैं देखूँ सारे एलिमेंट्स, लेट्स सपोज आई हैव 10 एलिमेंट्स, इसका कार्डिनल नंबर यूनिवर्सल सेट का 10 है. तो 10 में से अगर मैं बोलूँ एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालो, तो एम्प्टी सेट का जो मैं कॉम्प्लीमेंट निकालूंगी मतलब उस एम्प्टी सेट को छोड़ के मेरे पास कितने एलिमेंट्स बचे, तब भी 10 ही बचेंगे. 10 वी विल गेट, क्योंकि इसके अलावा एम्प्टी सेट तो अपने आप ही कुछ है ना, उसका कार्डिनल नंबर ही 0 है. तो 0 अगर तुम यूनिवर्सल में से उतना माइनस भी कर दोगे तो मेरे पास 10 ही बचेगा. तो मतलब 5 का कॉम्प्लीमेंट ऐसे मैटर नहीं करता. 5 का कॉम्प्लीमेंट करूँगा तो वही फिर से वही घूम करके वही आ जाएगा यूनिवर्सल सेट. नाउ वी विल टॉक अबाउट ए का कॉम्प्लीमेंट और फिर एक और उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट, ए डैश का डैश वी कैन से. तो इसमें क्या होता है ना, वही सेट फिर से आ जाता है. अब देखो कैसे,
अगर एक एलिमेंट है अगर हमारे पास एक सेट है ए, तो उसका अगर हम देखें तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए को उस सेट को छोड़ के बाकी के एलिमेंट्स, ठीक है। तो उसको लेट सपोज ए सेट में हमारे पास 1 एलिमेंट है, एक मतलब 1 2 2 एलिमेंट्स हमारे पास, और ए कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल सेट में टोटल है 1 2 3 4, और सेट ए में हमारे पास होगा 1 2, और बाकी उसके बाद जितने हैं वो हैं 3 और 4। तो हमारे पास यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया 3 और 4, और उसका भी अगर हम कॉम्प्लीमेंट कर दें मतलब 3 4, अभी ये सेट बन चुका है तो 3 4 का भी अगर हम कॉम्प्लीमेंट कर दें, उनको छोड़ के क्या है 1 और 2, तो 3 4 थे पहले कॉम्प्लीमेंट, उसका और कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारे पास 1 और 2 बचेगा। तो फाइनली हमारे पास एग्जैक्टली क्या आ गया, हमारे पास सेट ए आ गया। हम अगर याद करें तो हमारे पास जो 1 और 2 था वो सेट ए के एलिमेंट्स थे। तो अगर हम किसी भी एक सेट का 2 बार कॉम्प्लीमेंट कर देंगे तो इट विल अगेन बी द सेम सेट, वो फिर से अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा, खुद एक सेट बन जाएगा जो वो पहले था। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑन द ऑपरेशन ऑफ सेट्स। अब हमने प्रॉपर्टीज पढ़ ली, अब किस पे आते हैं हम, अब आएंगे हम लॉज ऑफ एल्जेब्रा ऑफ सेट्स। एल्जेब्रा तो आ ही जाता है हर जगह, नाउ वी विल स्टडी हियर आल्सो, सो वी हैव टू स्टडी, इट्स वेरी इजी। तो अब जो सेट्स हैं उसके एल्जेब्रा के कुछ लॉज हैं, लॉज ऑफ एल्जेब्रा ऑफ सेट्स वी विल स्टडी नाउ। तो अब इसमें है क्या, वी कैन सी दैट देयर आर 1 2 3 4 5 6 7, वी हैव 7 लॉज, नाउ वी विल स्टडी। पहला क्या है, idempotent लॉज। idempotent लॉज क्या होते हैं, फॉर एनी सेट ए वी हैव ए यूनियन ए इज इक्वल्स टू ए एंड ए इंटरसेक्शन ए इज ए। ये मतलब कह सकते हैं ऐसे होता है कि इनका तुम यूनियन भी कर लो तब भी यही रहेगा, इंटरसेक्शन कर लो तब भी यही रहेगा। मतलब कोई सेट है उसका तुम यूनियन कर दो उसके खुद के सेट के साथ, ठीक है, तब भी वो वही सेट आएगा, और उसका एक दूसरे के साथ इंटरसेक्शन कर दो तब भी वही सेट आएगा। एक सेट ले लिया हमने ए, अगर ए का खुद के साथ उसका यूनियन करोगे तो ए ही आएगा, और ए का खुद के साथ इंटरसेक्शन करोगे तब भी यही आएगा। दिस इज सो सिंपल थिंग, उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान सी चीज़ है। सेकेंड इज आइडेंटिटी लॉस। आइडेंटिटी लॉस क्या होता है, फॉर एनी सेट ए वी हैव, किसी भी सेट ए के लिए अगर हम देखें, वी आर रेफरिंग ए एज अ सेट नाउ ऑल दी एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज ओवर हियर। तो ए क्या है यहाँ पे, एक सेट है, ए का अगर तुम यूनियन करोगे फाई के साथ, फाई हमने पढ़ा था एम्प्टी मतलब कुछ भी नहीं, अगर हम किसी चीज़ का यूनियन किसी कुछ भी नहीं के साथ करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, वही एलिमेंट आ जाएगा, मतलब वही सेट आ जाएगा। ए एक सेट है, उसका मैं यूनियन कर दूँ किसी के साथ भी नहीं तो मेरे पास वही सेट तो आएगा जो मेरे पास है। सो दैट इज़ द सिंपल थिंग कि ए का यूनियन फाई के साथ करोगे तो यू विल गेट ए। सेकेंड इसमें क्या है, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल इज ए का अगर तुम इंटरसेक्शन करोगे यूनिवर्सल सेट के साथ, यूनिवर्सल सेट के अंदर ही एक ए सेट है, ठीक है, यूनिवर्सल तो सबसे बड़ा सेट हो गया, उसके अंदर एक वी कैन से उसके अंदर हमारे पास एक सेट आता है दैट इज ए सेट, ठीक है। अगर तुम यूनिवर्सल का ए के साथ इंटरसेक्शन करोगे, दोनों में कॉमन क्या है, ए सेट ही तो कॉमन है, ए के जो एलिमेंट्स है वही यूनिवर्सल सेट में कॉमन है, तो ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल हमारा हमेशा ए के बराबर आएगा। अब थर्ड कौन सी प्रॉपर्टी है हमारी, थर्ड लॉ जो हम कह सकते हैं वो है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, देखो फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, अगर हमारे पास 2 सेट है ए और बी तो उनके लिए हम कैसे इस लॉ को फॉलो करेंगे, लेट्स सी। ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी यूनियन ए, ये हमने बाकी अलजेब्राज में भी पढ़ा है, मतलब बाकी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में वी हैव आल्सो सीन दिस। इधर भी यही सेम चीज़ है कि ए का यूनियन चाहे बी के साथ करो या बी का यूनियन ए के साथ करो, कॉमन तो मतलब लोगे तो तुम सबके एलिमेंट्स ना, ए में अगर 1 2 है, बी में तुम्हारे 3 4 एलिमेंट्स हैं, तो यूनियन दोनों का अगर हम ए यूनियन भी करें तब भी 1 2 3 4 आएगा, अगर बी यूनियन ए करें तब भी 1 2 3 4 आएगा, क्योंकि सेट्स में कभी भी ऑर्डर एग्जिस्ट नहीं करता, ऑर्डर मैटर ही नहीं करता, बस रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, ऑर्डर तुम कुछ भी रख लो, 1 2 3 4 लिखो या 3 2 1 4 लिखो, बात एक ही है, बस 4 एलिमेंट्स हैं और वो सेम ऑर्डर मतलब सेम होने चाहिए, ठीक है, बस इतनी सी बात है। तो ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी यूनियन ए। अब ए इंटरसेक्शन के साथ भी सेम चीज़ है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए। ए में अगर दे रखे लेट्स सपोज 1 2 एलिमेंट्स हैं और बी में हमारे पास है 2 4 एलिमेंट, तो 1 2 और इधर 2 4, तो कॉमन क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इज 2 एंड बी इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन ए विल बी ऑल्सो 2, तो सेम बात है। नेक्स्ट लॉ आ जाता है हमारे पास एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या है, अगर हमारे पास कोई भी 3 सेट्स हैं, लेट्स सपोज वी हैव ए बी सी 3 सेट्स वी हैव, तो अगर हम ए यूनियन करें और उसका यूनियन किसके साथ करें, बी यूनियन सी के साथ अगर हम ए का यूनियन करें, तो इधर हम पहले क्या निकालते हैं, बी यूनियन सी। बी यूनियन सी अगर हम निकालेंगे तो हमारे पास कुछ एक सेट बन के आएगा, उसको अगर हम ए के साथ यूनियन कर देंगे तो वो किसके बराबर होगा, ए यूनियन बी
का पहले हमने वो करा, क्या बोलते हैं, यूनियन करा, उसके बाद उस जो सेट आएगा उसका यूनियन अगर हम सी के साथ भी कर देंगे देन वी विल ऑल्सो गेट द सेम रिजल्ट एज वी प्रूव्ड इन LHS. यू कैन सॉल्व इट वन बाय वन, यू कैन सॉल्व दिस बाय वन एग्जाम्पल. एक एग्जाम्पल खुद से लेके यू कैन सॉल्व इट, इट्स वेरी इजी. सेम विद इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन के साथ भी यही है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. सेम बात है. अब नेक्स्ट आ जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव हमने मैथ्स में और भी जगह पढ़ा है, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में ही पढ़ा है इन प्रीवियस क्लासेस, बट इधर सेट्स के बारे में बात हो रही है. इट्स अ लिटिल बिट डिफरेंट बट सेम ही है. अगर 3 सेट्स हैं ए बी सी, 3 सेट्स हैं हमारे पास, ठीक है, एक ए है, एक है, एक बी है और एक सी है. तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए खुद मतलब ए का यूनियन हम किसके साथ करें? बी इंटरसेक्शन सी के साथ, तो वो किसके बराबर होगा? इसको हम ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जैसे बाहर होता है, जैसे ब्रैकेट के बाहर होगा 2, अंदर होगा 3 + 4, तो क्या करते हैं 2 × 3 + 2 × 4, ऐसे हो जाता है ना, 6 प्लस हमारा वो हो जाता है 12, ठीक है, 6 + 8 सॉरी, इस टाइप से हम कर देते हैं. तो इधर भी यही करना है, ए को पहले बी के साथ भेज देना है और फिर सी के साथ भेज देना है. तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी को कैसे लिखोगे? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी. सिंपल सी बात है. ऐसे ही इंटरसेक्शन के साथ भी हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी अगर हम करें, यहाँ पे भी ये अंदर अंदर चल जाएंगे दोनों के साथ, ठीक है, ए दोनों के साथ चल जाएगा. तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी. सिंपल सी बात है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, वेरी इजी. अब नेक्स्ट जो आता है, जो नया है, दैट वी हैव डी मॉर्गन्स लॉ, और बहुत इंपॉर्टेंट है. डी मॉर्गन्स लॉ क्या है? इफ़ ए एंड बी आर 2 सेट्स, अगर 2 सेट्स हैं हमारे पास, सो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. देखो सिंपल सी ट्रिक है इसकी, कुछ है नहीं. अगर कोई एक सेट दे रखा है ए और एक बी सेट है, इन दोनों की अगर हम यूनियन कर रहे हैं और होल कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं, अगर हमें इसे सिंपल टर्म्स में ब्रेक करना है तो हम इसे कैसे करेंगे? कॉम्प्लीमेंट है, उनका कॉम्प्लीमेंट अंदर ले आओ, ए पे भी कॉम्प्लीमेंट लगा दो, बी पे भी कॉम्प्लीमेंट लगा दो. बस एक डिफरेंस क्या करना है, जो अंदर साइन होगा ना, मतलब जो अंदर हमारे पास एक ऑपरेशन लगा होगा, फॉर एग्जांपल इधर हमारे पास यूनियन लगा है, तो नेक्स्ट RHS में जाके जब तुम अंदर ले जाओगे ना कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे तुम्हें बस अपोजिट कर देना ऑपरेशन. अगर LHS में यूनियन है तो वहाँ जाके यू विल गेट, यू हैव टू जस्ट चेंज दैट ऑपरेशन और तुम्हें वहाँ जाके इंटरसेक्शन लगा देना है. सो इजी. तो अगर हम देखें ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट अगर हम देखें तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. अब ये नेक्स्ट वाला आप खुद सॉल्व कर सकते हो एक बार, ईजी है. लेट्स ऑल्सो डिस्कस दिस. ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट है, तो सोचो व्हाट वी कैन डू. सिंपल, अंदर डाल देंगे कॉम्प्लीमेंट और दोनों ऑपरेशन में जाके बदल जाएगा. तो ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट विल बी रिटन एज ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट. सो ईजी. यही थे कुछ लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स, इन्हें रिवाइज करने की ज़रूरत है, बाकी दे आर सो ईजी, करे जा सकते हैं. डी मॉर्गन लॉ इज़ रियली इम्पोर्टेंट. नाउ मैथ्स में प्रॉब्लम्स जो होती हैं, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स होते हैं, तो कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए भी है, मतलब वी हैव टू कीप सम फॉर्मूलाज इन आवर माइंड, ठीक है, स्कोर वेल. तो फॉर्मूलाज क्या होता है? इस चैप्टर में फॉर्मूला हमने पढ़े नहीं है, बट कुछ फॉर्मूलाज ये दे रखे हैं. किस पे बेस रही हैं? यूनियन और इंटरसेक्शन पे, किसी 2 सेट के. तो अगर ए बी सी देयर आर 3 फाइनाइट सेट्स, अगर मेरे पास 3 सेट्स हैं तो एन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू, अब देखो किसी चीज़ का अगर हमें 2 सेट्स का यूनियन निकालना है ना, तो पहले उन दोनों के कार्डिनल नंबर को प्लस कर दो, फिर उसमें से जो अगर यूनियन पूछा है तो इंटरसेक्शन माइनस कर दो. सिंपल है. अगर एलिमेंट्स पूछें कि ए यूनियन बी में कितने होंगे, तो कैसे निकालना है? ए के एलिमेंट्स प्लस बी के एलिमेंट्स माइनस कर दो उन दोनों के इंटरसेक्शन के एलिमेंट्स को. तो एन ए यूनियन बी अगर तुमसे पूछा गया है तो एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी कर दोगे. सेम केस है तुम्हारे इंटरसेक्शन के साथ. अगर तुमसे पूछा गया है कि ए इंटरसेक्शन बी में तुम्हारे कितने एलिमेंट्स होंगे, तो एन ए इंटरसेक्शन बी अगर पूछा गया है तो इसमें भी सेम यही करना है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए यूनियन बी कर देंगे दिस टाइम, ठीक है. इफ़ ए इंटरसेक्शन बी इज़ 5, अगर ए इंटरसेक्शन बी तुम्हारा 5 है तो एन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी. ऑब्वियसली अगर यहाँ पे एन ए इंटरसेक्शन बी 0 होता तो हम यहाँ 0 भी रखते, देन ऑल्सो वी विल गेट एन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू ए एन ए प्लस एन बी. इधर भी वही चीज़ दे रखी है, अगर ए इंटरसेक्शन बी हमारा 5 है तो एन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी. सिंपल सी चीज़ है, कोई अलग से बात याद रखने वाली नहीं है. नेक्स्ट इफ यू विल सी, तो एन ए माइनस बी क्या होता है, ये समझने वाली बात है. एन ए माइनस बी ये होता है कि जो सेट ए है उसमें से बी के एलिमेंट्स माइनस कर दिए जाएँ, ठीक है. तो
ए में से बी के एलिमेंट्स माइनस करने हैं, ठीक है। ये नहीं कि दोनों में से जो कॉमन है वो हटा दिया और बी के सेट जो बी सेट है उसके एलिमेंट्स भी लिख दिए, ऐसे नहीं करना है। पहले ए सेट के एलिमेंट्स लिख लो, फिर जो उन दोनों में कॉमन हो उसको माइनस कर दो। ए सेट है तो हमारे पास लेट्स सपोज 1 2 3 1 2 3 ले लिया। बी सेट है तो हमारे पास 1 1 4 5। तो अब इसमें कॉमन क्या है, कॉमन है हमारे पास 1, तो 1 2 3 में से मतलब जो सेट है उसके एलिमेंट्स है 1 2 3, उसमें से बी के एलिमेंट्स हटा दो, मतलब इंटरसेक्शन हटा दो एक टाइप से। तो इसमें कॉमन क्या है, दोनों में 1 कॉमन है, तो 1 कॉमन है तो हमने 1 हटा दिया, तो हमारे पास a माइनस बी आ जाएगा 2 3, ठीक है। 1 हटा दिया तो 2 3 बचेगा। सिंपल सी बात है। एन ए माइनस बी अगर हम फॉर्मूला देखें तो एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में जो कॉमन है वो हटा देंगे सेट ए में से। अगर यहीं पे होता एन बी माइनस ए तो क्या करते हैं एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास है एक और फॉर्मूला है एन ए यूनियन बी यूनियन सी। तीन सेट्स का अगर हमें मतलब यूनियन करना है तो कैसे करेंगे, तीनों के कार्डिनल नंबर को ऐड कर दो, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। अब माइनस कर दो हर एक चीज़ जो हमने पढ़ी है। जैसे हमने क्या पढ़ा है, अगर हमारे पास होता सिर्फ एन ए यूनियन बी तो हम क्या करते हैं ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर देते। अगर बी यूनियन सी होता तो बी इंटरसेक्शन सी को मतलब माइनस कर देते। और अगर ए यूनियन सी होता तो हम ए इंटरसेक्शन सी को माइनस कर देते। सेम चीज़ें यहाँ पे करनी है, बस लाइन से सारी चीज़ें एक साथ कर दो। ए का कार्डिनल नंबर एन ए प्लस एन बी फिर एन सी, ये हो गया। माइनस कर दो इनको अलग अलग सेट्स मान के। ए यूनियन बी होता तो माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी करते, फिर एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी। फिर क्या करना है, सबके इंटरसेक्शन को तो मैं ऐड भी कर देना है, प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सिंपल सी बात है। सारे कार्डिनल नंबर को ऐड करो, उनमें से सारे उसके इंटरसेक्शंस को माइनस करो, फिर सबका कंबाइंड एक इंटरसेक्शन को ऐड कर दो, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सिंपल, यही कुछ फॉर्मूलाज थे, बस ये फॉर्मूलाज आने चाहिए। यू कैन ईजिली सॉल्व एनी क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, बड़े ईजी। Now this we have came to the end of this chapter. Easy chapter था, प्रैक्टिस की ज़रूरत है बट इतनी भी ज़्यादा नहीं है, बट हाँ प्रैक्टिस करोगे तो दैट विल बी गुड फॉर यू। बहुत इजी चैप्टर है एंड स्कोरिंग चैप्टर है। अगर इसको अच्छे से कर लिया इट विल गिव यू गुड मार्क्स इन योर एग्ज़ाम्स। बहुत आसान है, तो इसमें बस कुछ चीज़ें याद रखनी है। सो मतलब अब जैसे एनसीईआरटी में सारे एक साथ फार्मूलाज नहीं दे रखे हैं, सो हमने एक फार्मूला शीट बनाई है विच कैन हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग दीज फार्मूलाज वेरी ईजली। मतलब ईजिली समझ तो आए गए होंगे बट स्टिल यू कैन रिवाइज फ्रॉम हियर। फार्मूला शीट है, इसमें सारे जितने भी फार्मूलाज हैं विच वी हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस स्लाइड्स यू कैन सी हियर। इसकी हमने मतलब पीडीएफ बना रखी है, इस पूरे मतलब जितना हमने पढ़ाया है इसका जो स्लाइड्स यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, इन सब की हमने पीडीएफ बनाई है विच यू कैन सी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और ये जो एक फार्मूला शीट है दिस इज प्रिपेयर्ड फॉर यू जस्ट फॉर योर रिविजन पर्पस। यू कैन रिवाइज फ्रॉम हियर, क्योंकि सारे फार्मूलाज एक जगह होते हैं, दैन दैट इज़ मोर ईजी फॉर अस, बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो जाता है हमारे लिए। और यहाँ से हम इजीली एक बार में ही सारे फार्मूलाज को रिवाइज कर सकते हैं। एक तरीके से वी कैन से अगर मैं बोलूँ ना तो सेट्स में सिर्फ इतना ही है और कुछ है नहीं ज़्यादा। सेट्स में बस ये चीज़ें अगर आपने रिवाइज कर ली यू कैन ईजिली सॉल्व एनी क्वेश्चन, क्योंकि बहुत आसान है चैप्टर। और बस इन आरडीज को बस देख लेना, एक बार फॉर्मूलाज देख लेना है और कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। लाइक वर्ड प्रॉब्लम्स है वो भी हम अभी आगे लाएंगे आपके लिए। तो वर्ड प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चंस हैं उनको वेन डायग्राम की हेल्प से सॉल्व करना है। एक चीज़ है विच आई वुड लाइक टू टेल यू, या एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ, दैट इज़ कि अगर कोई भी क्वेश्चन है उसको फॉर्मूले से भी पहले ना इन योर माइंड यू कैन सॉल्व थ्रू वेन डायग्राम। अगर कहीं पे भी फॉर्मूला भी लगाना है ना, फॉर्मूला लगाने से पहले अपनी कॉपी में अगर 2 सेट्स की बात हो रही ना तो 2 सेट को बना लो। जिस टाइप की इन्फॉर्मेशन दी है उस टाइप का एक वेन डायग्राम यू शुड प्रिपेयर फॉर योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू दैट क्वेश्चन इन योर एनी रफ शीट और समवेयर वेर यू कैन डू योर रफ वर्क। वहाँ पे एक वेन डायग्राम यू कैन ड्रॉ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अगर आपको फॉर्मूला भी याद नहीं है ना यू कैन ईजिली फाइंड आउट फ्रॉम हियर। बस आपको वेन डायग्राम अच्छे से आना चाहिए। अगर आपने वहाँ से एक बार अच्छे से मतलब सीख लिया ना वेन डायग्राम बनाना, देन एनी क्वेश्चन मतलब कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है विच यू कांट सॉल्व, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे बस वेन डायग्राम की हेल्प से। अगर आपको फॉर्मूले भी याद है ना दिस कैन ऑल्सो हेल्प यू देयर, बट हाँ अगर लर्न होंगे दैट विल बी गुड फॉर यू, इट विल नॉट कंज्यूम योर टाइम मोर। तो अगर टाइम बचाना है देन यू कैन लर्न दिस फॉर्मूलाज, अदरवाइज वेन डायग्राम भी अगर अच्छे से आता होगा देन यू कैन ईजिली सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। द लेवल ऑफ द क्वेश्चंस आर नॉट दैट टफ, तो ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।